So hello guys, good morning and welcome class 6th to 23rd April class of 6th class mathematics, which is taken by Adhiraj sir. So let us do not waste time and just hop into the book and let's just revise what we had studied yesterday. कल हमने पढ़ा था कुछ comparison of numbers के बारे में, face value and place value and how to form numbers, and we have just studied about the numbers. Last year जो class 5th थी आपकी, उसमें आपने पढ़ा होगा 5 digit numbers के बारे में maximum, and this year we are going to study about 6 digit number. As you can see in the book, we are just in the book 6 digit, 7 digit, 8 digit, and even we'll go to 9 also. So let us study the pattern or the terminology over here that is given in here, and what we see that we just read and we just go through the chapter. 9 plus 1 is 10. When we add, this is the largest single digit number. Do you know the largest number? What is the largest one digit number? 9. So what is largest? मतलब ऐसा number जिसके बाद उस तरह के digit का number है ही ना. So that means 9 के बाद कोई single digit number है क्या? नहीं. So single digit number में सबसे बड़ा कौन? 9. And as we add plus 1, so it becomes 10. Good. 99 plus 1, 100. So largest 2 digit number में 1 add करूँगा तो 100. Similarly, largest 4 digit number में 1 add करा, it would become 1 or 10,000. Okay, so 10,000 is the smallest 5 digit number. Okay, smallest 2 digit number is 10, smallest 3 digit number is 100. So this is the pattern that has been followed with every number. If we add, for example, here, if we add 1 to the greatest 7 digit number, what we will get? We'll just mark it up. If we add 1 to the greatest 7 digit number, we get the smallest 8 digit number. Okay, so if we add 1 to the greatest 6 digit number, we get smallest 7 digit number. So if we add 1 to the greatest n digit number, इस चीज़ को अब समझना, आ जाए एक बार शीट पे, कॉपी पे. If we add 1 to the greatest n digit number, what we will get? We will get smallest o digit number या n digit number, m digit number, कुछ भी, a digit number, जिस भी तरह का digit number. मैं o इसलिए लिया because o comes after n, m n o. So n डिजिट नंबर, ऐसा कोई डिजिट नंबर हो जिसमें हम 1 ऐड करें जो लार्जेस्ट है, तो वो बड़ा बन जाएगा, उस डिजिट्स को से बड़ा हो जाएगा. फॉर एग्जांपल 6 डिजिट 7 डिजिट में बदल जाएगा, एंड जो 7 डिजिट है वो स्मॉलेस्ट रहेगा. सो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. एज वी कैन सी हियर, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. Indian system of numeration. Okay, so Indian system हम जितना पढ़ते आ रहे हैं, हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, we have base 10 system. Let us come back into the sheet. What we had studied last year, that we follow base 10 system. बेस 10 सिस्टम लास्ट वीडियो में शायद मैंने डिस्कस करा था, यू कैन सी, एंड इफ नॉट तो यू कैन ऑल्सो विजिट 5th क्लास वीडियो, स्टार्टिंग वीडियो. उसमें आई हैव टोल्ड व्हाट इज़ बेस 10 सिस्टम वेरी प्रिसाइसली, एंड आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड विद यू इन द लास्ट वीडियो. सो बेस 10 सिस्टम हमको पता है कि हम फॉलो कर रहे हैं. अब जहाँ बात आती है न्यूमरेशन की, so we have 2 systems that we know over here in India. One is Indian system and the other is international numeration system, or you have a system for numeration.
सो व्हाट इज़ द डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है, लेट अस सी. आप लोगों ने सुना होगा कि वी यूजुअली टेल people that we have this much lakh, this much crore, या गवर्नमेंट के जो कई बार नोटिस आते हैं या न्यूज़ आती है, आप लोग न्यूज़ देखते होंगे तो 10 crores, 100 crores, 10,000 crores इस तरह के आता है. पर नाउ आई एम टेलिंग crores, lakhs के अलावा कई बार आप इंटरनेशनल न्यूज़ सुनते हो, so you just have heard million, billion, trillion. What is that? So that is international system. Let us hop into the book and see what is Indian system. So Indian system, in which expressing a number in words is called numeration, and representing a number is known as notation. In this system, number split into groups, periods. अब ये periods कहलाते हैं. Ones or units, thousands, lakhs, crores. Okay. So we have these periods. We'll see after crore also come Arab here. So we have these groups, or we have periods starting from right group called ones, thousands, lakhs, crores, Arabs. So what is there? Ones unit के अंदर अब हम देखते हैं तो we have ones, tens, hundreds. जो प्लेस वाली हमने पढ़ी थी वो ones units के अंदर आई, पीरियड वाले के अंदर. 1000 के अंदर 1000 और 10,000, lakhs के अंदर lakhs and 10 lakhs, crores के अंदर crores and 10 crore, and similar goes for Arab. Now what is important in numeration? If we are writing the number in numeral form, तो उसमें क्या important है? We use commas. कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? For separating the periods. इन periods को separate करने के लिए we use commas. For example, 10,570 रुपीज़ है, so 10,000 के बाद कॉमा लगेगा, and then 520. So which help us in reading and writing large numbers. अगर हम large numbers लिख रहे हैं तो उसको मदद करता है हमें रीड करने. So the first comma comes after 3 digit. Ones, tens, hundreds के बाद पहला कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद दूसरा, फिर 2 डिजिट के बाद तीसरा, and then 2 डिजिट के बाद fourth, and so on. International system of numeration. Now we'll study international system of numeration. In the international system of numeration, the periods are ones, thousands, millions, billions. अब यहाँ देखो, ones, thousand, millions, and then billions. जैसे हमारे यहाँ थे ones, thousand, lakhs, crores, and Arabs. यहाँ है 1000, millions, billions. So we have ones के अंदर क्या है? सेम ones, tens, hundreds उसी तरह है, प्लेस वैल्यू. अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 1000, 10,000 और 1000 के अंदर एक और जुड़ गया 100,000. फिर मिलियन में मिलियन, दैट इज़ 1 मिलियन हम बोल सकते हैं, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन. ओके, सो इट इज़ वेरी सिंपल किस तरह से आपको अपने टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी है. वील सी फॉरवर्ड. नाउ विल गो देन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. गाइज, आई वॉन्ट टू टेल यू, जस्ट पॉज द वीडियो, इस एक्सरसाइज को देख लो. डू एंड लर्न, पेज नंबर 8. यू हैव टू कंप्लीट इट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द वीडियो. ये आज आपका असाइनमेंट है. डू एंड लर्न. वीडियो ख़त्म होने के बाद आप इस पेज नंबर 8 पे आपकी बुक में जो मोबाइल में है उसमें आओ. मोबाइल में नहीं है, यू पॉज इट, आप डाउनलोड कर लो या इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे पॉज कर लो एंड मार्क द क्वेश्चंस एंड डू इट इन योर कॉपीज़. ये आपको कॉपीज़ में करना है कुछ. डू एंड लर्न. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द न्यूमरल. मैं आपके लिए फर्स्ट जस्ट हेल्प यू आउट. फर्स्ट आपके लिए मैं करता हूँ, आप शीट पे आ जाए. डू एंड लर्न, डू एंड learn. So we are in the sheet right now, and question 1 states that write the numeral for each of the following numbers. So first के लिए हमें numeral लिखना है. फर्स्ट क्या है? 42 lakh comma 70,008. बिकॉज यहाँ इसने हंड्रेड्स में कुछ नहीं बोला, टेंस में कुछ नहीं बोला, 8. सो इट इज़ दिस. देखो मैंने पीरियड्स को कैसे कॉमा से आई हैव सेपरेटेड इट. इन द सिमिलर मैनर यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2,
I'm doing only the first part of every question. Keeping the digits same, the smallest number formed using the digit 50. अच्छा अब इसने digit दिया है 506394 इसने ये digits दिए. कीपिंग द डिजिट्स सेम रखने हैं, डिजिट चेंज नहीं करने. ये डिजिट आप चेंज नहीं करोगे, ये जो डिजिट्स दिए हुए ये चेंज नहीं करने हैं. द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म, इससे सबसे छोटा नंबर क्या बनेगा? सबसे छोटा. डिजिट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7. तो वी हैव 7 डिजिट. 7 डिजिट का 7 डिजिट ही रहना चाहिए. और स्मॉलेस्ट नंबर क्या फॉर्म होगा? मैं आपको एक और एग्जांपल बता रहा हूँ, उससे आप कर सकते हैं. एग्जांपल आप देखो 7 डिजिट के अंदर ही 1 8 9 8 ओके 9 8 4 5 3 4 8 ओके 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स. ओके वी हैव अगेन 7 डिजिट्स. इस डिजिट से मैं छोटा नंबर बनाऊंगा एंड आई विल टेक 1 0 ऑल्सो. ओके मैंने 0 क्यों लिया आप लोगों को ये बताने के लिए कि 7 डिजिट सबसे छोटा बनाने के लिए आप तो पहले 7 इस तरह से डैश, यू जस्ट क्रिएट 7 डैश 1 2 3 1 2 3 एंड 1 दैट इज 7. ओके क्या मैं 0 पुट कर सकता हूँ? क्योंकि अब देखो सबसे छोटा कौन है इसमें से? 0. सबसे छोटा कौन है? 0. क्या मैं 0 ले आऊँ यहाँ पर? इफ़ आई पुट 0 तो ये 7 डिजिट नंबर ही नहीं रहेगा, ये बन जाएगा 6 डिजिट नंबर. बिकॉज 0 को अगर मैं यहाँ लिख दूंगा उसके कोई वैल्यू ही नहीं रही. सो वी विल नॉट राइट 0 ओवर हियर. 0 से थोड़ा सा बड़ा कौन है? अब इन नंबर्स को, इन डिजिट्स को आप देखो. अब 0 से थोड़ा सा बड़ा, बाकी नंबर से छोटा बट 0 से बड़ा. वी हैव 3. सबसे छोटा नंबर अब है 3. सो हम पहले 3 लिख देंगे स्मॉलेस्ट नंबर में. अब सबसे छोटा कौन है? 4. फिर सबसे छोटा कौन है? 4. फिर उससे छोटा कौन है? बट अब 0 तो भूल गए हम. 0 कहाँ गया? यस अगर किसी ने वीडियो के पहले ही बीच में ध्यान दे दिया तो इट इज़ वेरी गुड. आप इसी तरह से ध्यान दे के आप पढ़ें. 0 विल कम. 3 तो सबसे छोटा है बट यहाँ सबसे छोटा 0 आना चाहिए था, बट 0 होता तो 6 डिजिट हो जाता. तो हमने 3 लिख दिया, 0 से थोड़ा बड़ा. अब सबसे छोटा नंबर कौन है? 0. उससे बड़ा 3 आ चुका है. उससे बड़ा 4. उससे बड़ा 4 ऑलरेडी एक और बार है, सो विल राइट 4. अब उससे बड़ा 5. नाउ 8 and 9. दिस इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विद द सेम डिजिट्स. इसी तरह आपको इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर निकालना एंड चूज द ऑप्शन. सिमिलरली क्वेश्चन 3, हम वापस बुक में चल रहे हैं. क्वेश्चन 3, द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट्स इज. आपको यहाँ देखना है द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट्स. 3 डिफरेंट डिजिट यूज़ करके यहाँ पर सब तीनों में ही 987 तीनों डिजिट डिफरेंट है. 987 डिफरेंट है, 908 डिफरेंट है और 987 इसमें. तो इसमें से ग्रेटेस्ट कौन है? कंपैरिजन करके पता लगाओ. द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म्ड इफ़ वी री ऑर्डर द डिजिट ऑफ 189. सिमिलरली जैसे हमने छोटा फाइंड आउट करा था इसमें स्मॉलेस्ट, इसमें ग्रेटेस्ट फाइंड करना है. इसमें क्या बोला? कीपिंग द प्लेस ऑफ 8 द सेम. अब जो 8 की प्लेस है वो हमें सेम रखनी है. चलिए इसका भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ. क्वेश्चन 4 का एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको. यहाँ पर आपको कितना बोला है? द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म बाय रीऑर्डरिंग द डिजिट. मैं एक बार नंबर लिख लेता हूँ. 1895004 ये आपका नंबर है. और 8 की जो पोजीशन है मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, मैं हाईलाइट कर देता हूँ. आई विल जस्ट हाईलाइट. 8 का जो पोजीशन है वो आपको चेंज नहीं करना. ठीक है. कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8. सो पहले सेम 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 की पोजीशन कहाँ है? ये रही. इसको चेंज नहीं करना. अब इसने क्या बोला है? क्या फाइंड आउट करना? ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म. ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म. हम ये नंबर लिख लेते हैं 1, पर मैं इसके दूसरा नंबर करूँगा 2 8 5 4 5 4 3 2 5 0 5 0 0 6. लीजिए 9 इज़ माई फेवरेट नंबर. सो 9. ओके
8 की पोजीशन हमने नहीं बदली, सिमिलर सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, 8 डिजिट इसमें 8 डिजिट इसमें और 8 सेम प्लेस पे, 8 डिजिट को ऐसे ही रख देना। नाउ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें से? 9, सबसे पहले आ जाएगा 9, उससे छोटा, अब 9 से थोड़ा सा छोटा कौन है? 5, उससे छोटा 5 ऑलरेडी एक और बार है, उससे छोटा 4, उससे छोटा। अब डिसेंडिंग ऑर्डर चलना है, जब भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में डिजिट को प्लेस कर दो, यू विल फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम दोज डिजिट्स। यहाँ हमने असेंडिंग ऑर्डर करा था, छोटे से लेकर बड़ा करा था, और यहाँ हमें करना है डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से लेके छोटा। तो बड़ा हमने पहले लिख दिया 9, अब छोटा तक चल रहे हैं। 4 के बाद छोटा कौन है? 2, उसका छोटा कौन है? 0 और 0। दिस इज़ द लार्जेस्ट नंबर, और 8 की पोजीशन हमने चेंज नहीं करी। सो इन द सिमिलर मैनर आपको 4th क्वेश्चन करना है। वी विल ऑल्सो मूव टूवर्ड्स 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन व्हाट डज इट सेज? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को कंप्लीट करना है, यू कैन ईजिली कंप्लीट, आप ये अपने आप कंप्लीट करेंगे। इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम you just tell me. For example, 8 8 7 7 6 6 6. So 8, what we'll do? 8 8 7 7 6 6 6. Okay, we had placed it. Okay, now what? क्या बोला इसने? Complete the following table and arrange the numbers in descending order. तो पहले तो सबको एक बार नंबर्स लिख दो। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा। अब कंपेयर करो सारे नंबर्स को कंपेयर करो, और फिर बड़े से छोटे में, जैसे 99,999 सबसे ऊपर आएगा, 99 लाख 99,000 सबसे ऊपर आएगा। देन 95 लाख आएगा, फिर अगला मैं नहीं बताऊंगा, आप अपने आप करो। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको इसको लिखना है इसी तरह, ठीक है? बड़े नंबर से लेके छोटे नंबर तक, सबसे छोटा ये रहा 29 लाख, वो यहाँ आएगा। ओके, सो यू हैव टू राइट दिस, और ये पूरा डू एंड लर्न आपको फ्रेज अपनी कॉपीज़ में करना है। आफ्टर दिस वीडियो एंड्स, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। बट बिफोर दैट एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है? एग्जाम्पल 2, write each of the following in expanded notation. We will do it in our copies. अपनी कॉपीज़ में नहीं, मतलब मैं अपनी शीट पे कर रहा हूँ, आप लोग देखो इसको, मैं एग्जांपल कर रहा हूँ, आपको नहीं करना है इसको। यू डोंट हैव टू दिस, आपको सिर्फ पेज 8 पे वो डू एंड लर्न करना है। एग्जांपल 2, अब आप कॉपी, मेरी वाली कॉपी पे आप ध्यान दो, डिजिटल कॉपी। एग्जांपल 2 क्या है? एक्सपैंडेड नोटेशन में लिखना है। चलिए, फर्स्ट 6,28,450, दैट इज़ हंड्रेड्स, 10 lakhs 10,000 हो गया, एंड देन लाख 6,28,450। देखा कितना आसानी हुआ पढ़ने में। और सेकंड क्या है? 12,21,307। ओके, सो 307, 21,000, 12,21,307। ओके, सो नाउ वी हैव टू राइट इट इनटू एक्सपैंडेड फॉर्म। सो कौन सी पोजीशन पे है? ये कॉमा लगा हुआ अपन को पता है, वंस टेंस हंड्रेड्स। सो वंस क्या होता है? 0 into 1, एम आई राइट? प्लस 5 किस पोजीशन में? टेंस पे, 5 into 10। 4 किस पोजीशन पे है? 100 पे। हम अभी भी इंडियन सिस्टम में भी, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, हम सब अभी भी जो फॉलो कर रहा हूँ बेस 10 सिस्टम ही है। 10 की पावर 2, मैं 10 में ही चलूँगा। यहाँ आप कंफ्यूज मत होना, मैं इस वाले में आपको बताऊँगा किस तरह मैंने लिखा है। देन 8 into 10 का पावर 3, 2 into 10 का पावर 4, प्लस 6 into 10 का पावर 5, 6 into 1,0,0,0,0, that is 1 lakh, plus 2 into 10,000, plus 8 into 1,000, plus 4 into 100, plus 5 into 10 की पावर 1, 10 की पावर 0, plus 0 into 1, and then we can write 6 lakh plus 20,000 plus 8,000 plus 400 plus 50 plus 0.
दिस इज़ द एक्सपैंडेड फॉर्म. सिमिलरली हम दूसरे क्वेश्चन को भी करेंगे. 1 2 दैट इज़ 12,21,307. उसको हम कैसे लिखेंगे? 1 12 लाख. तो ये 1 जो है वो 10 लाख का पार्ट है. इंटू 10 की पावर 6 प्लस 2 किसका है? इंटू 10 की पावर 5 1 लाख प्लस 2. अब ये 2 किस पोजीशन पे है? 10,000 पे. 2 इंटू 10,000 10 की पावर 4 प्लस 1 किस पोजीशन पे? 1,001 इंटू 10 का पावर 3 प्लस 3 इंटू 10 का पावर 2 प्लस 0 इंटू 10 का पावर 1 प्लस 7 इंटू 10 का पावर 0. 1 इंटू 10 लाख प्लस 2 इंटू 1 lakh plus 2 into 10,000 plus 1 into 1,000 plus 3 into 100 plus 0 into 10 plus 7 into 1. So यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया? 10 lakh plus 2 lakh plus 20,000 plus 1,000 plus 300 plus 0 plus 7. So this is the expanded form of the given number. Let us move to another example. Let us move into the book. Example number 3. Example number 3. Insert commas in the correct position and write the numbers in words in Indian and international form. ये question आप ज़रूर करें. Example number 3 you have to do it in your copy. Example number 3. Do it in copies. सो पेज नंबर 8 के बाद वो डू एंड लर्न करने के बाद एग्जाम्पल नंबर 3 आप ज़रूर करेंगे. एंड इंडियन एंड इंटरनेशनल फॉर्म में कैसे लिखना है मैं एक एग्जाम्पल आपको करके बता रहा हूँ. एंड विल जस्ट गो एंड सी इन द बुक. हम बुक में ही देखेंगे इसको. विल नॉट डू इट इन द कॉपी बिकॉज आप इसको खुद घर पे करें सो दैट यू विल गेट टू नो एग्जैक्टली हाउ एंड वेयर टू इंसर्ट कॉमर्स एंड कैसे हम इसको प्रोनाउंस करेंगे. सो 300. अब एक बार इसको कॉपी में हम करके देखेंगे. 300 देन 00 देन 009. सो पहले 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट के बाद इस तरह से कॉमा लगेगा इंडियन सिस्टम में. और अब बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम की. 300000009. सो पहले 3 डिजिट के बाद फिर 3 डिजिट के बाद और अब ये रहे. सो अभी हम इसमें बोलते हैं ये हंड्रेड्स है. ये 10,000 ये 10,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन. तो 30 मिलियन दैट इज 30 मिलियन एंड 9 या 30 मिलियन 9. और ये हो गया 3 करोड़ 9. 3 देखो क्यों 1s 10s 100s 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 3 करोड़ 9. अब यहाँ पर 1s 10s 100s 1000 10,000 100,000 1 मिलियन 10 मिलियन तो 30 मिलियन इसलिए. ओके. सो सिमिलर मैनर में आप दोनों क्वेश्चन इसमें करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 के डू इट योर सेल्फ एग्जाम्पल. एंड वी मूव टू एग्जाम्पल नंबर 4. व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन द नंबर. हम इसको अपनी यहाँ पर अभी मेरी शीट पे करेंगे. डिजिटल कॉपी के अंदर आप प्लीज़ अब देखें. 3720 एग्जाम्पल में लिख लेता हूँ. एग्जाम्पल नंबर 4 3720861. सो 7 का प्लेस वैल्यू इसने पूछा है. द बुक हैज़ आस्क्ड अस फॉर द 7 प्लेस वैल्यू. सो विल सी 1s 10s 100s 1000 10,000. हम इंडियन सिस्टम के हिसाब से बताएंगे अब इसको. 1s 10s 100s 1000 10,000 देन लाख एंड 10 लाख. ये लाख वाली पोजीशन पे है तो 7 इंटू 10 का पावर 5 या फिर 7 इंटू 100,000 1s 10s 100s 1000 10,000 lakh. So we have what we got 7
lakh is the place value of 7. This is the place value. Okay, अगर ये इंडियन सिस्टम में, we'll see the international system also. इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर क्या होगा, लेट अस सी. 7 का पोजीशन 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, 100,000 एंड देन मिलियन. तो 7 का प्लेस 100,000 पे है. 7 का प्लेस 100,000 पे है. सो वी हैव 7 into 100,000. 100,000 again 10 to the power 5 same था. So 700,000 इस तरह से आप लिखेंगे. ये इंडियन सिस्टम के अंदर, ये इंटरनेशनल 700,000 इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर. Okay, now what we see here is comparison of numbers. इतने बड़े numbers हैं. Example 5 ये भी आप अपनी कॉपी में करेंगे अपने आप. इतने बड़े numbers का भी comparison कैसे होगा, सेम तरीके से. We'll make the table and we'll write the digits and we'll compare the digits. ये दोनों सेम करोड़ के डिजिट के, तो ये दोनों सबसे बड़े हुए इन चारों से, इन दोनों से. अब इसमें ये 10 लाख की डिजिट का और ये लाख, तो सबसे छोटा ये लाख डिजिट वाला, देन 10 लाख. अब इन दोनों को कंपेयर करो. 9 और 3 में कौन बड़ा है? 9 बड़ा, तो 9 इज़ द ग्रेटेस्ट. 9 करोड़ 76 लाख ग्रेटेस्ट है, और ये 3 है तो ये इससे छोटा है. सो इसको असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना है. एंड यू ऑल्सो हैव टू राइट इट इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर. आप प्लीज़ इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखें. आप प्लीज़ यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखें. यू कैन सी इन द बुक डिसेंडिंग ऑर्डर ऑल्सो. Please arrange the following numbers in ascending order and descending order also. Please pause the video. Example number 5. इससे पहले हमने देखा था example number 3 and do and learn. So what you have to do, I'm writing in the end, do and learn all questions, page number 8. Then after that, on page number 9, example 2 and example 5. Example on page number 9, example 2 and 9. Assignment for 23rd April. That's all guys. Stay safe, stay at home. मम्मी पापा की बात ज़रूर सुने. घर से अकेले बाहर नहीं जाएं. कुछ दिन क्रिकेट नहीं खेलोगे, कुछ दिन बाहर नहीं खेलोगे, नथिंग वुड गो. प्लीज़ स्टे सेफ. वी केयर फॉर यू. घर पे रहो, सुरक्षित रहो. वी आर विद यू. एनी टाइम इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, यू कैन पोस्ट इट ऑन यूट्यूब कमेंट. सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, तो जब भी वील पोस्ट एनी वीडियो यू विल गेट टू नो कि आपकी प्लेलिस्ट में वो वीडियो आ गया है, एंड यू कैन वॉच दैट एज अर्ली एज पॉसिबल. हम लोग यूजुअली अर्ली मॉर्निंग्स या इन नाइट ही हम लोग अपलोड कर देते हैं रात में. सो आपको यूट्यूब वीडियो सबसे पहले मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप पे डालने से भी पहले. सो प्लीज़ गाइज स्टे सेफ अगेन, स्टे एट होम, हैव अ नाइस डे अहेड. बाय.